Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we'll be having our 16th lecture, and that is about the creditors and credit rating agencies. But before we start our today's lecture, let's have a quick review about our last lecture. In last lecture we discussed about the firm, that there are basically two persons who take care about the firm, who are worried about the firm. The first one is obviously shareholder or stockholder, and the other person is the creditors. Then we discussed that there are two types of lenders. The first one is commercial banks and individuals. So companies basically दो sources से capital raise करता है, either from the general public or from the banks. बैंक से लोन लेता है या general public उस company के bonds खरीदती हैं, and that's how they can raise their capital or the funds. So credit rating agencies, then we discussed कि bonds normally it's required sort of ratings ताकि investors attract हों. Similarly जिस तरह shares को analyst rank करते हैं, similarly जो bonds होते हैं उसको agencies, credit rating agencies वो rating करती हैं. And then we have some government as well as local credit rating agencies, although we have some international credit rating agencies. So analysis of the situation having different credit ratings by different credit rating agencies. So there are certain situations कि जिसमें firm एक है जिसकी financial position एक है लेकिन उसको different ratings मिल जाती हैं. So the first perspective is from the agency side कि अगर एक local agency है उसने एक firm की rating ठीक नहीं की और पैक्रा जो पाकिस्तान की credit rating agency है उसने उसकी rating ठीक कर दी, so that means कि local credit rating agency को worry होना चाहिए, उसको फिक्र होनी चाहिए कि उसके पास इतनी expertise और इतने analyst नहीं है कि वो कंपनी की प्रॉपर फाइनेंशियल पोजीशन एनालाइज करे और उसकी रेटिंग पैक्रा से मैच कर जाए. सो द थिंग इज दैट दे शुड कंटिन्यूसली ट्राई टू इम्प्रूव देयर स्किल इन एनालाइजिंग द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन. सो दैट इज द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर्सपेक्टिव. फर्स्ट पर्सपेक्टिव इज कि फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन अगर स्ट्रांग है, so they should not be worried about going to some high credit rating agencies to get the good credit rating, which means कि अगर आपकी financial position strong है तो आपको किसी भी एजेंसी के पास जाने से नहीं डरना चाहिए. Obviously you will get a very good rating, although they will charge you some high fees, लेकिन अच्छी रेटिंग आपके लिए एज अ फर्म मार्केट से अच्छा कैपिटल या अच्छा लोन रेज कर सकता है. लेकिन अगर आपकी पोजीशन ठीक नहीं है, आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, सो ऑब्वियसली अगर आप अच्छी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में जाते हैं सो यू विल गेट सम लो क्रेडिट रेटिंग्स, तो ऑब्वियसली आपके पैसे भी गए और मार्केट से आपको इन्वेस्टर भी नहीं मिलता. This is our today's lecture outline. Today we will see that how the credit rating agencies start.
कि एजेंसीज ने कब से काम करना शुरू किया है. Then we will discuss some high credit ratings versus low credit ratings. Credit ratings basically, as we discussed in our last lecture, it's basically deals with the risk involved with the firm or with the bond. अगर आपकी जो कंपनी के बॉन्ड में रिस्क ज़्यादा है तो ऑब्वियसली यू विल गेट लो क्रेडिट रेटिंग. अगर आपकी कंपनी के बॉन्ड में रिस्क कम है तो ऑब्वियसली यू विल गेट हाई क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम द एजेंसीज. Then we will discuss today some another view of credit ratings कि एक नई कंपनी को एजेंसीज किस तरह रेट करती है, एज वेल एज एक मैच्योर कंपनी को एजेंसीज किस तरह रेट करती हैं. Then the big three as we discussed in our last lecture, that there are three major credit rating agencies in the world. Then PACRA, obviously जो पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, we will discuss it today. Then the most important, the ratings, कि कंपनीज की रेटिंग किस तरह होती है इन द बाय डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज. Then we discuss some criticism of credit rating agencies, जिसमें the first thing is the consulting firms. कि credit rating agencies they have started some other services apart from their credit rating, जिसमें consultation is one of the biggest problem of credit rating agencies. Then First Amendment right to CRAs, कि how the credit rating agencies can enjoy the privilege of not being sued by any company. कि फर्स्ट अमेंडमेंट राइट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को ये प्रिविलेज देता है कि उसके डिसीजन को कोई फर्म सू या चैलेंज नहीं कर सकता. देन वी डिस्कस दैट व्हाट्स हैपेंड कि अगर एजेंसी ने बाय मिस्टेक किसी कंपनी को गलत रेटिंग दे दी. देन वी डिस्कस CRAs एज वॉचमैन के CRA कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, in the corporate governance, and can act as a independent monitor or watchman for the investors. Then there is another main problem with the credit rating agency is that they have sometimes a strong relationship with the management. So obviously how you can expect the agencies to be independent and can rate accurately. Then blackmailing is another issue related with the credit rating agencies. Then we will conclude it with our international perspective by having some discussion about the Japanese firm. Now, how did rating agencies start? Moody John Manual of Railroad Securities, 1909, provided operating statistics for 200 railroads and their securities. In 1916, Standard Company began grading bonds. In 1920s, Poor and Pitch began bond rating. के 1909 में मूडीज जो दुनिया की सबसे अच्छी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में आती हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की सिक्योरिटीज़ की रेटिंग कर दी, जिसकी बेसिस पे वो जब इन्वेस्टर्स उनसे वो मैनुअल लेता था तो वो उस मैनुअल के बदले पे उनसे कुछ ना कुछ पैसे वो लेते थे. उस मैनुअल में जो basically there was some operating statistics for 200 railroads and their securities. उस मैनुअल में उसने thoroughly स्टडी किया था 200 railroads को and their securities.
सो इन्वेस्टर के पास जब वो मैनुअल जाता था तो ऑब्वियसली दे विल बी क्वाइट कॉन्फिडेंट कि वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सके। अनदर कंपनी स्टैंडर्ड कंपनी ने भी आहिस्ता आहिस्ता 1916 में दे स्टार्टेड रेटिंग डिफरेंट बॉन्ड्स। लेकिन चूंकि उस वक्त इनकी मोनोपोली थी, सो बाकी इन्वेस्टर्स के पास कोई चॉइस नहीं थी टू गो फॉर सम अदर रेटिंग्स। लेकिन इनकी रेटिंग भी ठीक थी बिकॉज इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टर्स को इंफॉर्मेशन चाहिए थी अबाउट द बॉन्ड्स रेटिंग। सो दैट्स हाउ दे मेड देयर बिजनेस। पुअर एंड फिच बिगेन बॉन्ड रेटिंग अगेन 1920 में। 1941 में पुअर्स एंड स्टैंडर्ड मर्ज, जो स्टैंडर्ड और जो पुअर्स की कंपनीज हैं इन्होंने मर्ज किया एंड दे स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस। So customers were investors who wanted unbiased arm's length financial analysis. So इन कंपनियों के पास इन्वेस्टर्स जाते थे ताकि वो इनको इन्फॉर्मेशन दे कि के फलां कंपनी ने जो बॉन्ड इशू किए उसकी क्या वैल्यू है, क्या स्ट्रेंथ है, उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। सो दैट्स हाउ दीज कंपनीज स्टार्टेड वर्क एंड मेड देयर बिजनेसेस। So credit rating agencies help investors understand the riskiness of a bond issued by issuing some grades. As we have discussed, कि credit rating means the risk involved with the bonds. अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है सो उसकी रेटिंग कंपनी अच्छी देगा बिकॉज देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्व इन द बॉन्ड्स। अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है सो ऑब्वियसली कंपनीज उसको जो रेट देगी वो कम देगी बिकॉज देयर इज रिस्क इन्वॉल्व विद द बॉन्ड्स। सो अ हाई क्वालिटी रेटिंग फॉर अ कंपनी मीन्स दैट दे कैन ऑफर अ बॉन्ड एट अ लो इंटरेस्ट रेट हैविंग लो रिस्क एंड स्टिल इजीली सेल देम। सो जो कंपनी जिसकी बॉन्ड्स की इंटरेस्ट कम होगा तो ऑब्वियसली उसको क्रेडिट जो मिलेगा रेटिंग एजेंसीज की तरफ से वो ज्यादा होगा बिकॉज देयर इज लेस रिस्क इन्वॉल्व। लेकिन जिस कंपनी का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा बॉन्ड्स का तो ऑब्वियसली उसमें रिस्क इन्वॉल्व ज्यादा है तो उसकी क्रेडिट रेटिंग कम होगी। इस तरह लास्ट लेक्चर में हमने इसको इस तरह एनालाइज किया था कि सपोज एक कंपनी की एक बॉन्ड की वैल्यू है 1 लाख रुपीस एंड दे सेड कि हम 1 लाख रुपीस पे आपको 20% इंटरेस्ट देंगे। ऑन द अदर साइड देयर इज अनदर कंपनी जिसकी बॉन्ड की वैल्यू अगेन 1 लाख रुपए है एंड दे सेड कि हम आपको 1 लाख के बॉन्ड पे जब ये मैच्योरिटी पे पहुंचेगा सो वी विल गिव यू 5% इंटरेस्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, कैन यू एनालाइज द सिचुएशन? आप मुझे बताएं कि रिस्क किस में ज्यादा इन्वॉल्व है? ऑब्वियसली द फर्स्ट वन बिकॉज 1 लाख रुपए पे ऑल्दो इट्स अ वेरी ह्यूज रिटर्न, 1 लाख रुपए पे आपको 20,000 रुपए मिल रहे हैं एंड सेकेंड केस में 1 लाख रुपए पे आपको सिर्फ 5,000 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन फर्स्ट केस में जो रिस्क एलिमेंट है वो ज्यादा है। किसी भी कंपनी से 20% इंटरेस्ट लेना इट्स अ बिट रिस्कियर एज कंपेयर टू गेट रिटर्न और लो इंटरेस्ट फ्रॉम अ कंपनी। सो कंपनी से 20,000 रुपए इंटरेस्ट लेना थोड़ा सा मुश्किल है अगर आप किसी भी दूसरी कंपनी से सिर्फ 5,000 रुपए लेते हैं। सो जितना आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है उतना ही आपका जो एलिमेंट ऑफ रिस्क है वो हाई होता है। तो आपका इंटरेस्ट रेट हाई, आपका एलिमेंट ऑफ रिस्क हाई, तो आपकी ग्रेडिंग कम होगी। सिमिलरली अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा, आपकी
जो रिस्क एलिमेंट है वो भी कम होगा, तो ऑब्वियसली आपकी रेटिंग क्या होगी, अच्छी होगी. So a lower quality rating would require offering the bonds at a high interest rate, having high risk and cost firms millions in interest payment. So लोअर क्वालिटी रेटिंग का मतलब ये है कि ये कंपनी बेसिकली ज्यादा इंटरेस्ट दे रही है, सो दैट मीन्स कि वो ज्यादा पैसा देगी लोगों को. सो द एलिमेंट ऑफ रिस्क इज देयर. जितना आपका रिटर्न बढ़ता है आपका एलिमेंट ऑफ रिस्क ज्यादा होता है. सो वी कैन कंक्लूड इट इन दिस वे. फॉर एग्जाम्पल कि एज वी हैव सेड कि क्रेडिट रेटिंग्स मीन्स द रिस्क रिलेटेड टू क्रेडिट. So high credit rating means low interest rate, that is low risk, or low credit rate means high interest rate means high risk. Or we can see this figure on the other side कि low, the first one कि जो लो इंटरेस्ट रेट मीन्स लो रिस्क, दैट मीन्स हाई क्रेडिट रेटिंग. हाई क्रेडिट रेटिंग मीन्स कि एजेंसीज इन्वेस्टर्स को बता रही है कि भाई आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें एंड ऑब्वियसली देयर इज अ लेस रिस्क कि आपको अपना रिटर्न ना मिले. इन शॉर्ट लो रिटर्न है तो आपको उसका लो रिटर्न लाजमी मिलेगा. सो आपकी जो रेटिंग है वो हाई है. ऑन द अदर साइड व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स आर हाई, लेकिन एक लालच तो है बंदे को कि मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे, ज्यादा पैसे तो रिटर्न मिल रहा है आपको बॉन्ड्स पे, लेकिन रिस्क भी तो है. सो हाई इंटरेस्ट रेट मीन्स हाई रिस्क, सो द एजेंसीज विल रेट यू लो, which means कि एजेंसीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अपने इन्वेस्टर्स को बता रही हैं कि अगर आप इस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ठीक है आपको रिटर्न तो ज्यादा मिलेगा बट उसमें रिस्क ज्यादा है. सो दैट्स व्हाई दे आर गिविंग लो क्रेडिट रेट. So the bond having high interest rate may be awarded as low credit rate by the credit rating agencies. So जिस बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट हाई होगी उसको क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कम रेट देंगे, एंड द बॉन्ड हैविंग लो इंटरेस्ट रेट may be awarded high credit rate by the credit rating agency. और जिस बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट कम होगी सो उसको क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हाई रेट देगा, मींस कि इसमें रिस्क कम है और आप इजीली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. अगेन फॉर एग्जांपल 1 लाख वर्थ ऑफ बॉन्ड having 10% interest rate will give you or will give the lender 10,000 rupees. That is 1 lakh multiplied by 10 divided by 100 is equal to 10,000 rupees. Similarly, 1 lakh worth of bond having 5% interest rate will give the lender 5,000 rupees. So from the above example, we can conclude that there is a high risk involved in the first example, having 10 interest rate with the bond and will give low credit rating from the credit rating agencies and vice versa. So first example में although return ज़्यादा है लेकिन return के साथ जो रिस्क का एलिमेंट है वो भी ज्यादा है. सो इस सिचुएशन में फर्स्ट केस में आपकी जो रेटिंग होगी वो कम होगी बिकॉज ऑफ द
हाई रिस्क इन्वॉल्व। सेकंड केस में रिटर्न कम है बिकॉज ऑफ लो इंटरेस्ट रेट, लेकिन उसके साथ रिस्क भी कम है। सो आपकी जो क्रेडिट रेटिंग होगी वो हाई होगी। So another view of credit rating. Now we will discuss another perspective of the credit rating by different credit rating agencies. For example, there are two companies, एक नई कंपनी है और एक मैच्योर कंपनी है। So and for both companies there are two situations. नई कंपनी जो न्यू कंपनी है, न्यू बॉर्न कंपनीज हैं, अगर वो लो इंटरेस्ट रेट देती है बॉन्ड्स पे, सो उसकी क्रेडिट रेटिंग हाई होगी बिकॉज इट्स ए न्यू कंपनी, इंटरेस्ट रेट्स आर लो, जो रिस्क का एलिमेंट है वो भी लो है। सो ऑब्वियसली जब वो बॉन्ड एजेंसीज के पास जाएगा दैट कि हम ये बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं और हम उस पर इतना इंटरेस्ट दे रहे हैं, सो एजेंसीज उनको हाई क्रेडिट रेटिंग देगी। सिमिलरली अगेन एक नई कंपनी है एंड दे आर चार्जिंग हाई इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, सो ऑब्वियसली एजेंसीज उनको लो क्रेडिट रेट देगी because it's a new company and they are charging high interest or they are giving high interest to the public, to the people. So जब वो एजेंसीज के पास जाते हैं कि भाई ये हमारी एक नई कंपनी है, हमने जो बॉन्ड्स इशू करने हैं हम पब्लिक को उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे, तो एजेंसीज के एक्सपर्ट्स उनसे पूछती है कि यू आर अ न्यू कंपनी, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप अपने इन्वेस्टर्स को, अपने कस्टमर्स को ज्यादा इंटरेस्ट देंगे? आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, आपकी इतनी स्ट्रांग क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, आपकी कंपनी की जो रेपुटेशन है वो मार्केट में इतनी अभी नहीं है, और आप अपने कस्टमर्स को ज्यादा पैसे देंगे, ज्यादा रिटर्न देंगे, सो दैट मीन्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उसको कम या लो रेट देगी। सिमिलरली अगर एक मैच्योर कंपनी है जो काफी अरसे से काम कर रही है, बस 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल, अगर वो ये कहती है कि हम अपने बॉन्ड्स पे अपने क्लाइंट्स को ज्यादा इंटरेस्ट रेट देंगे, सो माय क्वेश्चन इज फ्रॉम यू कि व्हाट डू यू थिंक कि एजेंसीज उनको क्या रेट देगी, आइदर हाई और लो? डेफिनेटली हाई क्रेडिट रेट, because of their maturity, because of the company's strong reputation in the market, because of the company's strong financial position in the market, so they can easily give more return, more interest to their clients. सो क्रेडिट रेटिंग उस एजेंसीज जो है कभी भी उनको लो क्रेडिट रेटिंग नहीं देगी, बिकॉज द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज नो कि इस कंपनी के पास इतनी पोटेंशियल है कि वो अपने क्लाइंट्स को ये पैसा रिटर्न कर सके। सो ऑब्वियसली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज विल गिव देम अ हाई क्रेडिट रेट। ऑब्वियसली अगर आप कंपेयर करें नई कंपनी और मैच्योर कंपनी, तो नई कंपनी में ये डर है कि आप वो रिटर्न क्लाइंट्स को नहीं दे सकते बाय गिविंग हाई इंटरेस्ट टू द क्लाइंट्स, सो ऑब्वियसली आपकी रेटिंग कम होगी। लेकिन मैच्योर कंपनी जो 25-30 साल से काम कर रही है एंड इफ दे वांट टू गिव मोर इंटरेस्ट टू द कंपनी, टू द क्लाइंट्स, टू द इन्वेस्टर्स, सो ऑब्वियसली जो एजेंसीज हैं वो कभी भी उसको लो रेट नहीं देगी बल्कि हाई रेट देगी। दैट मीन्स दैट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर बेसिकली इनकरेजिंग द पीपल, द इन्वेस्टर्स, कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करें बिकॉज यू विल गेट योर सेफ रिटर्न। और एजेंसीज
किस तरह कह सकती हैं? बिकॉज दे कैन सी देयर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रेपुटेशन इन द मार्केट. लेकिन सपोज अगर एक मेच्योर कंपनी वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के पास जाती हैं एंड दे से कि वी आर इशूइंग दीज बॉन्ड्स एंड वी विल गिव लो इंटरेस्ट रेट टू द इन्वेस्टर्स. सो अगेन ये तो उससे भी अच्छी बात है. जितना रिस्क का एलिमेंट वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. मेच्योर कंपनी अगर हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है, देयर इज अ बिट, थोड़ा सा एलिमेंट जो रिस्क का एलिमेंट है दैट इज देयर. लेकिन अगर एक मेच्योर कंपनी अपने बॉन्ड पे कम इंटरेस्ट रेट देगी, सो इसमें तो रिस्क है ही नहीं. सो इस केस में कंपनी आपको बहुत अच्छा रेटिंग करेगी, एजेंसीज. So the big three credit rating agencies are Standard and Poor's, Moody's Investors Services, and Fitch Rating. Moody's and Standard and Poor's each control about 40% of the market. Third ranked Fitch Ratings, which has about a 14% market share, sometimes is used as an alternative to one of the other measures. Means three जो major credit rating agencies हैं, that is Standard and Poor's, Moody's and Fitch, कि जिनकी मार्केट में काफ़ी contribution है in the credit rating for different firms. In Pakistan, we have PACRA, Pakistan Credit Rating Agency, and many other private credit rating agencies. कि पाकिस्तान में if you want to rate your bond, so PACRA is there to rate your bond, and obviously PACRA के पास काफ़ी strong जो financial analysts हैं, strong experts हैं, जो आपके फर्म की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करके एंड कैन गिव यू अ वेरी फेयर एंड स्ट्रॉन्ग रेटिंग फॉर योर बॉन्ड. एंड मेनी अदर प्राइवेट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज. प्राइवेट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी हैं मार्केट में जो आपको अच्छी रेटिंग दे सकती है. लेकिन एज एन इन्वेस्टर और एज अ फर्म you should at least check the agency's reputation in the market. अगर एक प्राइवेट एजेंसी भी है लेकिन वो 10-20 साल से मार्केट में काम कर रही है, so that means that they have a very good reputation in the market. So if once you get the rate from that private agencies, so investors आप पे trust करते हैं because they basically trust that private credit rating agency because of their reputation in the market. Now the ratings. To assess the credit worthiness of companies, the credit agencies employ financial analysts who examine the firm's financial position, business plans and strategies. अब किसी भी कंपनी के बॉन्ड को रेट करना इट्स नॉट एन इजी टास्क. बिजनेस किस तरह होता है एजेंसीज का कि बेसिकली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज दे एम्प्लॉय अ वेरी हाई क्लास फाइनेंशियल एनालिस्ट. तो वो करते क्या हैं, दे एग्जामिन द फर्म्स फाइनेंशियल पोजीशन, और उसी फाइनेंशियल पोजीशन योर बिजनेस प्लान्स, योर स्ट्रेटजीज, इच एंड एवरीथिंग. सो इसी बेसिस पे फिर वो आपकी रेटिंग करते हैं. सो दैट्स हाउ दे मेक देयर बिजनेस. जब आपकी रेटिंग करते हैं एंड व्हेन यू गो फॉर द एजेंसी एंड रेट योर बॉन्ड, सो आपकी रेटिंग
के बदले में दे आस्क फॉर सम कमीशन और फीस फ्रॉम योर firm or company. So this means that the analysts carefully review public financial statements by the companies. So that means कि जो एनालिस्ट होता है इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, वो आपकी करंट एज वेल एज पिछली जितनी भी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होती है, पब्लिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी एनालिसिस करता है. उसकी एनालिसिस के बाद they make their recommendations, they make their ratings for your bonds. So to assist in their investigations, the Security and Exchange Commission has granted the agencies an exemption from disclosure rules so that companies can reveal non-public and sensitive information to the agencies in confidence. Basically क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बैक पे जो होता है वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन काम करता है. सो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को इतनी अथॉरिटी दी है कि वो फर्म के साथ मिलकर फर्म की जो यू कैन से द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जो नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन थी, वो भी शेयर कर सकती है टू गेट द रियल पिक्चर ऑफ द कंपनी. सो कंपनीज हैव नो ऑब्लिगेशन टू रिवील स्पेशल इंफॉर्मेशन, बट दे ऑफन डू सो टू कन्विंस द एजेंसीज that their debt issues bonds should be rated highly. अब कंपनीज भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम कोऑपरेशन करती हैं, बिकॉज अगर कंपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के साथ कोऑपरेट नहीं करेगी, सो हाउ द एनालिस्ट ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी विल गेट द रियल और द एक्चुअल फेस ऑफ द कंपनी, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी. तो जब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के एनालिस्ट के पास फर्म की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन नहीं आएगी, तो ऑब्वियसली वो उस कंपनी की जो बॉन्ड्स है उसकी रेटिंग ठीक नहीं करेगा. सो मैनेजमेंट बेसिकली या कंपनी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के जो एनालिस्ट होते हैं उनके साथ इसलिए भी कोऑपरेट करती है कि वो मार्केट में उनके लिए अच्छा रेट दें. कंपनी को जब अच्छा रेट मिलेगा बॉन्ड को फ्रॉम द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे एंड द कंपनी कैन रेज देयर कैपिटल और मनी फ्रॉम द पब्लिक. सो नॉर्मली कंपनीज को किसी किस्म की दिक्कत नहीं होती. बेसिकली दे डोंट फील एनी सॉर्ट ऑफ हेजिटेशन to give the sensitive or non-public information to the credit rating agencies analyst. So credit analysts can often question CEOs and other top executives directly when conducting reviews because of the importance of credit ratings. क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के जो एनालिस्ट होते हैं बेसिकली वो सीईओज के साथ भी मिलते हैं और जितनी भी टॉप मैनेजमेंट, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स एटसेट्रा एटसेट्रा सबके साथ मीटिंग्स करते हैं जस्ट टू गेट द फेयर पिक्चर ऑफ द कंपनी, ताकि रेटिंग में किसी किस्म का मसला, किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो. बिकॉज एंड में उसी रेटिंग के बेसिस पे इन्वेस्टर्स उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे. So rating of bond safety and examples bond yield. Normally Moody's how they basically rate different companies, they use if the rating is best quality, if the bond is of best quality, so they give them AAA. Then for high quality they use AA. Upper medium grade means A. Medium grade means one capital A, two small a. Non-investment grade means BA, and non-investment grade means
ये कि अब ये बॉन्ड इज नॉट गुड फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पसेस. High speculative B and defaulted or close to it, triple C to C. Similarly, Standard and Poor's, they are using triple capital A for best quality, then 2 capital A for high quality, then 1 upper medium grade, they use A capital A. For medium grade they use triple capital B. For non-investment grade they use triple double capital B, and for high speculative they use B, and defaulted or close to it from triple C to C they use these grades. So basically हर एक कंपनी की अपनी ग्रेडिंग स्टाइल है. कुछ कंपनीज हो सकता है अब माइनस यूज करे टुवर्ड द पॉजिटिव, फ्रॉम माइनस टू द पॉजिटिव. Some may use straight away 1, 2, 3, 4, 5. So that depends from company to company and their way of grading the ratings. So dear students, if you can see this table, you will see कि जितना आपका bond yield percentage कम है, आपकी rating उतनी ही ज़्यादा है. Best quality, for example, 6.4%. Then 6.9%, 7.1%, 7.8, 9.9, 10.5 and 20 to 90%. So means आपकी इंटरेस्ट रेट जितना कम होगा आपकी रेटिंग उतनी हाई होगी. Explanation. Consider two companies that want to borrow $1 billion by issuing bonds. The rating company rate the first company in the high quality category. This firm will have to pay 69 million or 6.9% in interest every year. So the second firm is rated non-investment grade and would have to pay 99 million annually. So these amount differ substantially. Risky companies pay higher interest. So 69 million as compared to 99 million is a lesser amount. So that's why जो 99 million की जो रिटर्न है उसको फर्म ने नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड की रेटिंग की है. If a company becomes stronger financially, stronger over time, then the bond rating will also improve. It's not necessary कि आपकी बॉन्ड की एक दफ़ा रेटिंग अगर अच्छी नहीं हुई, suppose if you got some low credit rating for your bonds, तो वो हमेशा उतनी ही रहेगी. This is not the case. Actually अगर आपकी कंपनी की जो रेटिंग है बॉन्ड की वो ठीक नहीं है, and if you work hard एंड अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक होती है, आपकी मार्केट रेपुटेशन ठीक हो जाती है फॉर एग्जांपल, सो आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है बॉन्ड्स की वो अच्छी भी हो सकती है. सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि बेसिकली इट्स योर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दैट गिव रेटिंग टू योर बॉन्ड्स. इसमें एजेंसीज का कोई अमल नहीं होता. Agencies have nothing to do with your ratings. सिर्फ वो आपकी कंपनी की पोजीशन एनालाइज करते हैं और फिर वो आपकी ग्रेडिंग करते हैं. सो अगर आपकी फाइनेंशियल अगर किसी एजेंसी ने आपके बॉन्ड की रेटिंग अच्छी नहीं की, दैट मीन्स कि वो एजेंसी ठीक नहीं है. द प्रॉब्लम इज इन योर फर्म, आपकी फर्म ठीक नहीं है. So when a firm begins to struggle financially, credit agencies downgrade the rating on its securities, that is from AAA to AA or even A. So जितनी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कम होगी आपकी रेटिंग एजेंसी कम भी हो सकती है. जितनी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ योर कंपनी ग्रेजुअली इंक्रीज करती है उतनी आपकी रेटिंग इंक्रीज होती है.
Now, criticism. Now, there are certain criticisms on the credit rating agencies. कि credit rating agencies आखिर उनका उन पे क्या criticism है? Consulting businesses, conflict of interest. Being both consultants and credit raters create a conflict of interest similar to the one that occurred when auditing firms were also consultants for the company. जब एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किसी कंपनी के लिए एज अ कंसल्टेंट काम करेगी, so how you can expect that agency to properly evaluate the financial position of the company and give them the real and actual and fair ratings? Dear students, if you can recall, we have studied in our accountants and auditors lectures कि जब एक फर्म के लिए एक ऑडिट फर्म वो ऑडिट भी करती है और उसके लिए एज ए कंसल्टेंट भी काम करती है. सो बेसिकली द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स एंड कंसल्टेंट्स आर इंटायरली डिफरेंट. ऑडिटर क्या करते हैं? ऑडिटर का मेन काम यह है कि आपकी कंपनी की प्रॉपरली फाइनेंशियल पोजीशन को एवेल्युएट करें. कंसल्टेंट आपको सर्विसेज देती है, आपको रिकमेंडेशंस देती है फॉर फर्दर बिजनेसेस. सिमिलरली हियर बेसिकली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम यह है कि आपकी कंपनी की प्रॉपर एनालिसिस करके, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके आपकी एक्चुअल पोजीशन निकालें, उसके बाद आपकी बॉन्ड्स की रेटिंग करें ताकि इन्वेस्टर्स को एक्चुअल रेटिंग मिले, इन्वेस्टर्स के पास एक्चुअल इंफॉर्मेशन जाए कंपनी की और उसी के बेसिस पे फिर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं. लेकिन अगर एक ऐसी एजेंसी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो किसी फर्म के लिए एज ए कंसल्टेंट भी काम कर रही है, सो उस फर्म के लिए उसकी रेटिंग पे मार्केट में, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर्स ट्रस्ट नहीं करेंगे. सो अगर इन्वेस्टर को यह पता चल जाता है कि इसकी रेटिंग, इस फर्म की रेटिंग, बॉन्ड्स की रेटिंग उस फर्म ने की है जो, या उस एजेंसी ने की है जो इसी कंपनी के लिए एज ए कंसल्टेंट भी काम कर रही है, तो ऑब्वियसली उस रेटिंग पे कोई भी इन्वेस्टर ट्रस्ट नहीं करेगा. बिकॉज ऑफ द क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज ऑफ द क्लियर डिफरेंस इन द जॉब डिस्क्रिप्शन of the credit rating agencies and credit rating agencies by giving them the ratings and by giving them the services of consultation. So अच्छा फर्म वो होता है या अच्छी कंपनी वो होती है जो ऐसी एजेंसी से अपनी रेटिंग करवाए जिससे वो अपने फर्म के लिए कंसल्टेंसी की सर्विसेज नहीं लेता. दैट मीन्स कि फॉर अ फर्म देयर मस्ट बी अ सेपरेट फर्म that can provide them the consultancy services, and there must be a separate agency that can rate their bonds. Another criticism on credit rating agencies is that First Amendment right to credit rating agency. According to this right, companies cannot sue any credit rating agency and make credit rating agencies nearly invincible. First Amendment right in the US basically gives this power to the agencies कि अगर उसने एक दफ़ा किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को लो ग्रेड कर दिया, उसको फिर फर्म्स सू नहीं कर सकती कि आपने हमें ये लो ग्रेड क्यों दिया. सो दैट इज़ a sort of privileged basically
enjoyed by credit rating agencies. Mistakes while rating. Credit rating agency play a vital role while rating different firms. Giving wrong credit rate, high as well as low, can put the company as well as investors in chaos. अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने किसी भी फर्म को गलत रेटिंग दे दी, आइदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, आइदर हाई क्रेडिट रेट और लो क्रेडिट रेट, तो ये कंपनी के लिए भी ठीक नहीं है और इन्वेस्टर्स के लिए भी ठीक नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग नहीं है, लेकिन बाय एनी सोर्स या बाय एनी मींस एक एजेंसी उसको हाई क्रेडिट रेट दे देती है, सो उससे होगा क्या? होगा ये कि वो बॉन्ड्स जब मार्केट में जाएंगे, सो जब इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्ट करेंगे उस बॉन्ड में, तो ऑब्वियसली कुछ अरसे के बाद मे बी कि वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाए और इन्वेस्टर्स का पैसा डूब सकता है. सो जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंगल मिस्टेक मेड बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, इन्वेस्टर्स का पैसा डूब सकता है. सिमिलरली, अगर एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज किसी ऐसी फर्म जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसने उसकी रेटिंग लो रेटिंग कर दी, सो फिर अगर वो बॉन्ड जब मार्केट में जाएगा, सो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो लॉस किसका होगा? द फर्म और द कंपनी as well as the investor, because of the mistake made by the credit rating agency, फर्म की प्रॉपर एवेल्युएशन नहीं हुई, सो उसकी रेटिंग जब मार्केट में लो जाएगी तो इन्वेस्टर बहुत कम इन्वेस्टमेंट करेंगे. सो एनी सॉर्ट ऑफ मिस्टेक, इन शॉर्ट वी कैन से कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को बहुत एहतियात करनी चाहिए किसी भी कंपनी की रेटिंग्स में. सो द बॉटम लाइन इज कि जो पोजीशन है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की, उसी के मुताबिक रेटिंग करें और मार्केट में लेके जाए. अब इन्वेस्टर्स का काम है कि वो उसमें इन्वेस्टमेंट करता है या नहीं करता, लेकिन अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कोई मिस्टेक कर दी तो फिर दोनों का नुकसान होगा. So credit rating agency as a watchman, independent monitor. So credit rating agency are not blameless in the corporate scandals. Indeed, their special relationship with the companies allow them to obtain private information and can detect fraud and warn investors. Corporate sectors में जितने भी frauds होते हैं, so my question is कि what do you think कि उसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का कोई अमल दराखत है? So obviously the answer is yes, because as we have studied कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का जो एनालिस्ट होता है वो जब कंपनी में जाता है तो कंपनी का सीईओ एंड टॉप मैनेजमेंट उसको काफी सेंसिटिव एंड नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन देती है. सो अगर वो प्रॉपरली उसको ग्रेड नहीं करेगा या उसको पता चल जाता है एनालिस्ट को, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का, कि इस कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड कि काफी एजेंसीज, काफी फर्म्स में, काफी कॉर्पोरेशंस में बड़े बड़े फ्रॉड हुए. सो दैट मीन्स कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के जो एनालिस्ट है उनको सब इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन वो प्रॉपरली एज ए इंडिपेंडेंट मॉनिटर के तौर पे काम नहीं करता. होना तो ये चाहिए कि वो
अगर उसको पता चल जाता है that there is some problem with the company or with the management, or there is any problem in the financial public financial statement as well as the managerial accounting. So इस चीज़ को वो टाइम पे डिस्क्लोज करके जितने भी फ्रॉड्स वो डिटेक्ट कर सकता है, या वो इस किस्म की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करके एटलीस्ट जो इन्वेस्टर्स हैं उसको वार्न कर सकता है कि भाई इस कंपनी की पोजीशन ठीक नहीं है, इट्स बेटर नॉट टू गो एंड मेड योर इन्वेस्टमेंट. लेकिन अगेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज देयर मेन कंसर्न इज अगेन देयर फीस, देयर कमीशन. सो अगर वो वाकई सही काम करें, सो जितने भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्कैंडल्स या फ्रॉड्स हैं उसकी तादाद बहुत कम हो सकती है. Another criticism on credit rating agency is that they have some relationship with the management. One of the biggest criticisms on credit rating agencies, that is having relationship with the management. So how the investors would rely on credit ratings. बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की टॉप मैनेजमेंट या जो कंपनी का सीईओ होता है उसके साथ रिलेशनशिप होती है. सो फिर जो मैनेजमेंट कहती है या जो सीईओ साहब कहते हैं तो एजेंसी वही रेटिंग करती है. इसमें भी फिर दो बातें हैं. अगर एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग है तो उसको अपना रिलेशनशिप विद एजेंसी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या उसको ज़रूरत ही नहीं है कि वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के साथ अपना रिलेशनशिप को यूज़ करें. लेकिन मैनेजमेंट और सीईओ उस वक्त अपना रिलेशनशिप यूज़ करती है विद द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जब उसको पता होता है कि कंपनी की पोजीशन ठीक नहीं है. सो दे आर लुकिंग फॉर मोर मनी फ्रॉम द जनरल इन्वेस्टर्स. सो बिकॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप जो कंपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का एनालिस्ट होता है उसको रेटिंग अच्छी देता है. फिर ये बॉन्ड जब मार्केट में जाते हैं, इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और एंड में फॉर एग्जांपल अगर कंपनी किसी किस्म का लॉस करती है या बैंकरप्ट होती है तो लॉस किसका होता है? इन्वेस्टर का. सो बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप विद द मैनेजमेंट ऑलवेज जो इन्वेस्टर दे लूज देयर मनी. Another criticism of credit rating agency is blackmailing for new businesses. So new businesses normally require moral as well as financial support to sustain. So credit rating agencies can blackmail them to get good credit ratings for their businesses to sustain. So dear students, as you know कि जब एक नई कंपनी मार्केट में आती है सो ऑब्वियसली उसको फाइनेंशियली एज वेल एज मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है. सो देयर आर सर्टन एजेंसीज, मोस्ट ऑफ द टाइम द प्राइवेट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जो न्यू बिजनेसेस को ब्लैकमेल कर सकती हैं कि भाई अगर आपने हमें ज़्यादा फीस नहीं दी या ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया तो वी विल गिव यू लो क्रेडिट रेट, जिससे क्या होगा इन रिटर्न यू विल लूज योर रेपुटेशन इन द स्टॉक मार्केट. इन्वेस्टर्स आपके पास नहीं आएंगे एंड यू आर न्यू इन दिस बिजनेस, सो ऑब्वियसली यू विल लूज योर कंपनी. सो अनदर क्रिटिकल criticism is the element of blackmailing is there in the credit rating agencies. Now the international perspective, we will take the example of Japan. Like during 1980s, in most countries, bank debt is the primary form of corporate borrowing, and even the primary source of new financing due to the lack of sophisticated public debt market. As you know, कि जो developing countries में
कंपनीज के लिए जो सोर्स ऑफ कैपिटल होता है दैट इज ऑब्वियसली द कमर्शियल बैंक. जनरल पब्लिक इतना वो से कैपिटल रेज नहीं कर सकते. लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वहाँ पर कंपनीज दे कैन एंजॉय बोथ द सोर्सेज. दे कैन बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स, एज वेल एज they have a very smart sophisticated investors available in the market. So although Japan is a developed market but still rely heavily on bank debt, having long term relationships with bank, usually with each firm having a main bank. जापान में जो नॉर्मल ट्रेंड है, although it's a developed market, लेकिन जापान में 80s में वो रिलाय करते थे ज्यादातर बैंक्स पे. तो बैंक पर क्या करते थे? These main banks are usually on equity and place its own personal into important management position, including directorships of borrowing firms. तो जब जापान ज्यादातर ट्रस्ट करता था बैंक्स पर, कमर्शियल बैंक्स पर, नॉर्मली दे कॉल्ड मेन बैंक. तो फिर बैंक भी चूंकि ह्यूज पैसे देता था उनको, तो वो अपना कोई बंदा, एक नुमाइंदा या अपना एम्प्लॉय उसी कंपनी में भेजता था और अच्छी पोजीशन में, नॉर्मली डायरेक्टरशिप की पोजीशन पे उसको वो भेजता था, ताकि वो बैंक के पैसों की एक किस्म की टेक केयर करें. So the positive aspects of main bank, इसका फायदा क्या हुआ? Active monitor of the Japanese firm, कि the representative from the main bank can act as an active monitor of the Japanese firm. Firms don't care about the cash reserves as they have main bank. Another positive point of keeping main bank for the firm is कि फिर फर्म के को जो कैश रिजर्व रखने की टेंशन नहीं होती. उनको पता होता कि हमारी बैंक पे वो मेन बैंक है, सो उनको जब भी पैसे की जरूरत होती तो मेन बैंक उनको वो पैसे रेडी करके दे देता. मेन बैंक ऑल्सो was always there to help in financial crisis. Now the 1990 में जब जापानीज मार्केट ने क्रैश किया, सो जब एक्सपर्ट्स ने कुछ एनालिसिस किया, सो दे केम अप विद दीज नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मेन बैंक, कि मेन बैंक की क्या क्या जो खामियां थी जिसकी वजह से जो जापानीज मार्केट 1990 में वो क्रैश कर गई. टू मच इन्फ्लुएंस ऑन मैनेजमेंट, के मेन बैंक का जो रिप्रेजेंटेटिव फर्म में बैठा हुआ है एज अ डायरेक्टर, वो काफी इंटरफेयर कर रहा था मैनेजमेंट के साथ. प्रेशराइजिंग फर्म फॉर प्रॉफिट स्टेबलाइजेशन रादर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर क्लेम्स एज द फर्म्स लार्जेस्ट क्रेडिटर्स. प्रेशर वो क्या डालता जो मेन बैंक का रिप्रेजेंटेटिव, के प्रेशर ये डालता कि आप कंपनी जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ ना जाए, बल्कि प्रॉफिट स्टेबलाइजेशन, कि आप एक स्टेबल प्रॉफिट मेंटेन करें, ज्यादा पैसों के पीछे ना भागें. उनका मकसद भी यही था मेन बैंक का, कि वो दे बेसिकली वांट टू मेंटेन देयर पोजीशन, कि मेन बैंक हमेशा इनका टॉप का क्रेडिटर रहे. But if the bank faced financial difficulties, may lead their client firm in financial troubles. Another negative point कि कभी कभार मेन बैंक की अपनी फाइनेंशियल पोजीशन खराब होती, तो चूंकि फर्म डिपेंडेंट होता है मेन बैंक पे, अब जब मेन बैंक की पोजीशन खराब हो जाती थी तो ऑब्वियसली जापानीज फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन भी डिस्टर्ब हो जाती थी. So this is the end of our today's lecture. Let's summarize what we have studied in our topic, that is creditors and credit rating agencies.
So we have discussed that basically there are two persons that take care of the firm, that is the shareholder as well as the creditors. Then we discussed that there are two types of lenders, commercial bank जो firm को पैसे देते हैं, as well as individual can buy the bonds and can give money to the firm or company as a loan. Then we discussed the importance of credit rating agencies, that each bond they must have some sort of ratings in order to attract different investors in the market. So there are different agencies, international agencies भी हैं, जिसमें हमारे पास Moody's, Standard and Poor and Fitch जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, as well as Pakistan में we have PECRA and some private credit rating agencies. So analysis of the situation having different credit ratings by different credit rating agencies. Then we analyze the situation कि अगर एक फर्म जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन एक ही है, लेकिन उसको जब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की तरफ से डिफरेंट रेटिंग्स मिलती हैं, सो जिस क्रेडिट रेटिंग जिस एजेंसी की रेपुटेशन कम है मार्केट में, उसको फिक्र करनी चाहिए कि मेरी रेटिंग अच्छी कंपनी या अच्छी एजेंसी की रेटिंग के साथ मैच नहीं कर रही. दैट मीन्स दैट आई शुड हैव टू इम्प्रूव माई एक्सपर्ट्स, आई शुड हैव टू इम्प्रूव माई फाइनेंशियल जो एनालिस्ट हैं, ताकि मेरी रेटिंग उनके साथ मैच कर जाए. अनदर थिंग इज कि फर्म्स को अच्छी कंपनीज के पास जाना चाहिए अपनी रेटिंग के लिए, इफ दे हैव अ वेरी स्ट्रांग फाइनेंशियल पोजीशन. पैसे ज़्यादा लगेंगे लेकिन एंड में इन्वेस्टर्स उनके पास ज़्यादा आएंगे एंड दे कैन कॉम्पनसेट विद देयर एक्सपेंसेस. लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली आप अच्छी एजेंसी के पास नहीं जा सकते, बिकॉज कि आप अच्छी एजेंसी के पास जाएंगे तो वो आपकी रेटिंग कम करेगा. नंबर वन, जब आप मार्केट में जाएंगी आपकी रेटिंग अच्छी नहीं होगी, इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे एंड आपके पास इतना पैसा नहीं आएगा. सो देन वी डिस्कस हाउ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज स्टार्ट के 1909 में मूडीज ने काम शुरू किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टैंडर्ड एंड पुअर, देन दे मर्ज्ड बेसिकली, and that's how these three major international credit rating agencies started their work. Then we compare the high credit ratings with the low credit ratings. कि अगर आप की कंपनी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देती है अपने इन्वेस्टर्स को, दैट मीन्स कि उसमें रिस्क इन्वॉल्व ज़्यादा है, सो यू विल गेट लो क्रेडिट रेटिंग. अगर आप की कंपनी फॉर एग्जांपल लो इंटरेस्ट रेट देती है, दैट मीन्स कि द एलिमेंट ऑफ रिस्क इज लो, सो यू विल गेट द हाई क्रेडिट रेटिंग. देन वी कंपेयर द न्यू कंपनीज विद द मैच्योर कंपनी. सपोज एक न्यू कंपनी वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देती है अपने क्लाइंट्स को, सो दे विल गेट देयर लो क्रेडिट रेटिंग. अगर वही नई कंपनी लो इंटरेस्ट रेट देती है, so that means they can get high credit ratings. Similarly, if there is a mature company, if they are offering high interest rate to their investors, so obviously because of their past experience as well as strong financial position, तो agencies उसको high credit rate देगी. लेकिन अगर वही अच्छी mature company, if they offer low interest to their investors or clients, so obviously the credit rating agencies will give them the best rating in the market. Then we discuss some big threes, that is the world largest credit rating agencies. Then PECRA is again Pakistani, the government agency which rate different firms for their bonds. Then we discuss some rating procedures. In criticism on the agencies, the first one is that they started businesses in the consultancy field for the firms. So एक firm जिसकी वो रेट कर रहा है, जिसके बॉन्ड को वो
रेट कर रहा है और उसी के लिए वो कंसल्टेंसी के तौर पे काम कर रहे हैं. सो देयर इज अ क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन दीज टू jobs. Another criticism is the First Amendment right to credit rating agencies, that whatever you can get from the agencies, any rate, as a firm you cannot sue your agency. Then mistakes is another criticism. If in one way or the other by mistake अगर आपने गलत रेटिंग कर दी, so investors as well as the firm वो suffer करेगा. Then we discuss the credit rating agencies as a watchman can play a very crucial role for the investors, because they know the sensitive as well as the non-public information. So अगर वो ये information पहले से ही disclose कर दे in the market, तो बड़े बड़े जो frauds हैं वो बच जाएंगे corporate sector में. Then relationship with management. Credit rating agencies का normally they have some relationship with the management. So जिस कंपनी की उन्होंने रेटिंग करनी है, अब उसी कंपनी का CEO अगर एजेंसी की जो टॉप मैनेजमेंट है उसका रिलेटिव है, so obviously they will get their good ratings. Blackmailing is again one of the biggest criticism on agencies कि जो न्यू कंपनीज आती है मार्केट में, सो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो प्राइवेट जिनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं होती, दे कैन ब्लैकमेल द न्यू बोर्न और द इन्फेंट इंडस्ट्री इन द मार्केट, कि अगर आप उनको ज़्यादा पैसे नहीं देंगे तो ऑब्वियसली वो आपकी रेटिंग अच्छी नहीं करेगा और जिससे आपकी एक जो नई कंपनी है वो डूब सकती है. देन वी डिस्कस द इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव एंड डिस्कस द केस स्टडी ऑफ जापान. So this is the end of our today's lecture and topic. Allah Hafiz.